Hello students, today we will be starting with one of the important subtopic uh, that is linear regression. Now linear regression as far as state board is concerned, linear regression का जो weightage है वो है around 9 marks in your board exams. And again this linear regression is not only useful for your examination point of view, but it is also useful for many fields, like it is used in data science, it is used in medical science for predicting the value of one variable when other value variable is given. Then it is also used in machine learning. So let's see what is linear regression and हम क्यों linear regression का use करते हैं वो हम देखेंगे. So देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, सपोज इट इज 2x plus y is equal to 8. If this is the equation, we know it is linear equation. Why linear equation? Because power of x and power of y both is equal to 1. That is why it is linear equation. And अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो you will get a line. That is why it is linear equation. Now अगर ये linear equation है तो we know that how we can find order pair x comma y which will satisfy this equation. उसके लिए हम क्या करते हैं, we consider random value of x. x की कोई भी random value लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने x equal to 0 लिया है तो y will be 8, तो one of the order pair is 0 comma 8. अगर मैंने x ली है 1 तो y will be 6, 1 comma 6 will satisfy this. If x is 2 then y will be 4, राइट. तो इस तरह से वी नो कि अगर इक्वेशन हमें पता है, इफ दिस इज द इक्वेशन, देन इक्वेशन से हम डिफरेंट ऑर्डर पे, जो कि यहाँ पर हमने इस तरह से फाइंड आउट किए 0,8, 1,6, 2,4. नॉट ओनली दिस बट देर आर मेनी पॉइंट्स which can be obtained with the help of this equation. Means we know how to find order pair or different values of x and y which will satisfy this equation. ये हमने पढ़ा हुआ है, मतलब इक्वेशन से डिफरेंट पॉइंट्स किस तरह निकालते हैं वो हमें पता है. दैट इज आइदर वी कंसीडर रैंडम वैल्यू ऑफ x एंड विल फाइंड y, और वी कंसीडर रैंडम वैल्यू ऑफ y एंड विल फाइंड x. तो दिस इज द टेक्निक which is known. Now in linear regression we will study कि if this data is given, means if these order pairs are given, then how to find equation. Means it is reverse procedure. Equation से data निकालना, that is equation से ये order pair निकालना is known. Now we'll learn how we can find equation from these order pairs. So this is what is there in linear regression. So as far as definition is concerned, it is like it is the technique मतलब होता है method which uses the linear equation. इसमें linear equation हम लेकर आते हैं, that is why it is called linear regression. So that uses the linear equation to model the relationship between a dependent variable and an independent variable. तो बच्चों डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्या होता है वो हम कुछ इस तरह से सीखते हैं कि अगर मैंने y लिया है सपोज x plus 1, राइट, तो दिस इज एन इक्वेशन. ना x की वैल्यू हम कोई भी लें, x की वैल्यू कोई भी रैंडम वैल्यू जब हम लेते हैं, सपोज अगर मैंने x लिया है 1 तो y विल बी 2. मतलब here in this case x is independent variable and y which depends upon x is dependent variable, और ये जो है वो है dependent variable. तो इस तरह से y equal to something in terms of x या x equal to y के टर्म्स में अगर इस तरह से है तो इस केस में दिस y is independent and x is dependent. बिकॉज y की रैंडम वैल्यू अगर हम जो भी लेते हैं उसके बेसिस पे आपको x की वैल्यू मिलने वाली है. तो बच्चों हमने लीनियर रिग्रेशन में क्या पढ़ना है कि अगर इस तरह से ऑर्डर पेयर्स है, मतलब x की वैल्यू एंड y की वैल्यूज, दिस इज वेयर वी यूज बाइवेरिएट डेटा. बाइवेरिएट क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक है x एंड दूसरा है y.
तो अगर इस तरह से कुछ डेटा है, सपोज 2, 4, 6, 8 एंड योर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y आर गिवन 10, 15, 17, 18, तो देखिए 2 के लिए y is 10, when x is 4, y is 15, बट ये डेटा से मतलब ये जो x और y की वैल्यूज दी गई है, हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, x एंड y का रिलेशनशिप, एंड वो रिलेशनशिप कहाँ यूज होगा कि इन फ्यूचर अगर मुझे x की कोई वैल्यू पता है तो वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y हम फाइंड आउट कर सके। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हमने देखना हो तो यहाँ पर हम किस तरह से देख सकते हैं कि सपोज इनकम इज देयर and expenses. Now income is represented by x and expenses represented by y. And suppose कुछ years का data आपके पास है कि for so and so income expenses are so much, whatever. Okay, so by using that data we can find relationship between x and y. x and y के बीच का relationship हम find out कर सकते हैं, and later on in future इनकम, कितनी इनकम के लिए क्या एक्सपेंसेस होने चाहिए वो हम इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज वेयर लीनियर रिग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द डेफिनेशन। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन इज नथिंग बट इट इज द टेक्निक टू फाइंड द लीनियर इक्वेशन which relates the two variables x and y, and they can be dependent and independent variable. This is what is there in linear regression. अब बच्चों लीनियर रिग्रेशन अगर आपको पढ़ना है तो वी शुड नो सम बेसिक थिंग्स, प्री रिक्विसाइट नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। मतलब लीनियर रिग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, लीनियर रिग्रेशन एज यू नो कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए वी शुड नो सम बेसिक थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर 11th स्टैंडर्ड, जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। एंड as far as maths or stats is concerned, notations are very important. Notation, because maths is the knowledge, maths is the language of notations. तो अगर आपको notations एकदम clear होंगे तो आपको problem solve करना भी बहुत easy होगा। तो let's see what are the basic things which we should know. सबसे पहली चीज है sigma x. This sigma x is nothing but it is the standard deviation. स्टैंडर्ड डिविएशन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज बीइंग डन बाय यूजिंग सिग्मा एक्स। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। देन सिग्मा एक्स दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस के बीच का रिलेशनशिप है, दैट इज वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। आइदर दिस वे यू कैन से, और यू कैन से दैट स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिंपली रूट ऑफ वेरिएंस। These things, either you remember first one ki variance is the square of standard deviation or standard deviation is the root of variance. This is second thing. Now next thing is the x bar and y bar. x bar and y bar जो है वो represent करते हैं means. mean के लिए एक और टर्म हम यूज कर सकते हैं, that is average. तो हम average किस तरह से find out करते हैं? average और mean of the given data is simply sum of observations divided by number of observations. So वही चीज हमने यूज की है। एंड यहाँ पे हमने ये बाइवेरिएट डेटा, बाइवेरिएट डेटा का मतलब है कि दो वेरिएबल्स का डेटा, अगर कुछ इस तरह से दो वेरिएबल्स और बाइवेरिएट डेटा अगर दिया गया है, दैट इज x1 की वैल्यू के लिए वैल्यू y की क्या है y1, x2 के लिए y2, लाइक दिस। दिस इज द बाइवेरिएट डेटा। एंड बाइवेरिएट डेटा के लिए अगर आपको मीन पूछा जाए x का, तो it is x bar and mean of y is y bar. x bar, y bar are the means and these are the formula to find them. Now next thing is the formula to find variance. हमें पता है कि variance जो है वो standard deviation का square है, तो अगर हम variance निकाल सकते हैं तो उसका root लेके हमें standard deviation मिल जाएगा। तो variance का formula that is v of x, which is also equal to sigma x square, is simply 1 by n. n is the number of observations, summation xi minus x bar. तो x bar क्या है? mean. xi minus x bar whole square. Either this is the formula or
इसका मॉडिफाइड वर्जन इज देयर विच इज 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे जो ये 1/n है वो सिर्फ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, वो आपको याद रखना है। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ y, अगर वेरिएंस ऑफ x का जो फॉर्मूला है उसी में अगर आपको वेरिएंस ऑफ y निकालना हो तो xi की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, yi, एंड x बार की जगह y बार, एंड दीज आर दी वैल्यूज ऑफ y। तो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y। ना वेरिएंस x एंड वेरिएंस y के बाद जो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वो है कोवेरिएंस। कोवेरिएंस का मतलब होता है जॉइंट वेरिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स। वेरिएंस जो है वो एक ही वेरिएबल के लिए होता है कि एक ही वेरिएबल में कितना वेरिएशन है। तो अगर कोवेरिएंस है तो कोवेरिएंस मतलब जॉइंट वेरिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। तो उसका फॉर्मूला है, पहले तो नोटेशन आप देख लो क्योंकि नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। It is represented by COV, that is covariance of x comma y, and formula is 1/n summation xi minus x bar bracket में, then next bracket में yi minus y bar। x bar y bar यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो means है। Same thing, modified version of the covariance का formula is 1/n summation xi yi minus x bar y bar। Please make a note of this thing that 1/n is only multiplied by this term, that is summation xi yi। ये x बार y बार के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, so this is covariance। नेक्स्ट इज जो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। स्मॉल r से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि टू वेरिएबल्स हाउ मच दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर, एंड दैट कैन बी मेजर्ड by using correlation coefficient, and this is the formula, that is covariance upon sigma x into sigma y। What is sigma x? Sigma x is the standard deviation in x and sigma y is the standard deviation in y, and covariance and standard deviation के लिए यहाँ हमारे पास फॉर्मूले हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इतने जो फॉर्मूले हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए लीनियर रिग्रेशन के लिए, so that we can start with the actual part of linear regression। So after knowing this prerequisite, now let's start with the actual thing, that is how we can find equations using linear regression। So bachcho there are two types under this। So linear regression or we can say regression equation, regression equation of। So there are two types। First type is linear regression of y on x and your x on y। So दो टाइप है, पहला है y on x and दूसरा है x on y। तो y on x में बच्चों क्या होता है, जो x है, x is the independent variable and y is the dependent variable, and x on y में it is vice versa। x on y में y is the independent variable and x is the dependent variable। So whenever we need regression equation of y on x, तो उसका फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से y माइनस y बार इक्वल टू by(x) टाइम्स x माइनस x बार, राइट। एंड x on y का फॉर्मूला जो है वो है x माइनस x बार इक्वल टू bxy टाइम्स y माइनस y बार। तो देखो ये याद रखना बहुत सिंपल है कि जब इट इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x तो फॉर्मूला स्टार्ट्स विथ y, तो y माइनस y बार equal to this is by(x) and your x on y means this is bxy। I'll tell you what is the formula to find by(x) and bxy and what they are called। So जब y on x है तो फॉर्मूला आपका y से शुरू होता है, and जब x on y है तो आपका फॉर्मूला शुरू होता है x से। Okay, so these are the formulae। Now in this formulae we know x bar
is simply summation xi upon n, and y bar is yi summation yi upon n, and these are nothing but these are means. ये means होते हैं. Okay, बाइवेरिएट डेटा में x की वैल्यूज एंड y की वैल्यूज दी होती है, दैट इज बाइवेरिएट डेटा, टू वेरिएबल्स का डेटा, एंड वी कैन इजीली फाइंड x बार एंड y बार. तो x बार एंड y बार आर दी मीन्स, जो कि मैंने पहले भी बताया, एंड byx bxy इन दोनों को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से, इट इज कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y डिवाइडेड बाय वेरिएंस. देखिए अभी याद किस तरह से रखना है, बी वाई एक्स, एक्स बाद में आ रहा है, राइट, तो इट इज डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स. एंड सिमिलरली बी एक्स वाई, न्यूमरेटर इज सेम, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय, सी वाई इज कमिंग आफ्टरवर्ड्स, तो इट इज वेरिएंस वाई. दिस इज ओनली trick to remember this. And these two, byx and bxy, are called regression coefficients. इन्हें हम क्या बोलते हैं, regression coefficients बोलते हैं. Okay, so these are two formulae, and इन दोनों फॉर्मूले में x bar y bar are the means, byx and bxy are called regression coefficients, and these are the formulae to find them. Now we'll be solving problems based on this subtopic, that is y on x and x on y linear regression. Now let's start with the questions. These are the questions from class 12 textbook of Maharashtra State Board for commerce stream. This is exercise number 3.1, and this is the question 3 from that, and we are starting with the very simple question. हम simple से शुरू करेंगे and later on we will move on to the complex problems. So अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो question है वो क्या है, for a certain bivariate data on 5 pairs of observations. So 5 pairs of observations मतलब n is equal to 5, number of observations is equal to 5. यहाँ पर n की value है 5 of observations given, and this is the given thing, this data is given. Summation x का मतलब है summation xi only, xi के बदले हम x भी लिख सकते हैं, which is 20, summation y is 20, then summation x square का मतलब है summation xi square, it is one and same thing whether you write summation xi square और summation x square, ऐसे भी लिख सकते हैं. Then summation y square है 90, summation xy, again as I said कि x is same as xi and y is same as yi. तो यहाँ पर xi yi की जगह आपको x and y दिया गया है. तो this is the given data, and हमें covariance, regression coefficients and r correlation coefficient, ये 4 चीजें हमें find out करनी. तो let's see how we find it. तो सबसे पहले let's start with the covariance. तो बच्चों यहाँ पे आपको फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी है. तो वी नो दैट, विल राइट कोवेरिएंस का फॉर्मूला. अब बच्चों कोवेरिएंस के लिए आपको पता है कि हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं. देयर आर 2 फॉर्मूले फॉर कोवेरिएंस. पहला वाला जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, 1/n summation xi minus x bar into yi minus y bar, and modified version of same formula which we have is 1/n summation xi yi minus x bar y bar. तो बच्चों हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड फॉर्मूला जो यूज़ करना होता है वो डिपेंड करता है जो आपका डेटा दिया गया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में जिस तरह का डेटा होगा उसके हिसाब से हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं. ओके, सो अगर अभी आप डेटा देखोगे तो वहां पर इस डेटा में हमारे पास xi माइनस एक्स बार, जो ये ब्रैकेट का टर्म है, एंड yi माइनस y बार, ये हमारे पास नहीं है वैल्यू. समेशन xi माइनस एक्स बार एंड yi माइनस y बार की वैल्यू नहीं दी है. इंस्टेड ऑफ दैट summation xy is given, this value is given. As I told you कि x is same as xi and y जो है yi है. तो summation xy हमें पता है. अब x bar y bar हमें पता नहीं है, but we can find it because we know summation x and summation y. ओके, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये
सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो कोवेरियंस इज 1/n summation xy minus x bar y bar. Now before substituting the values, हम कुछ इस तरह से लिखते हैं समेशन 1/n समेशन एक्स वाई माइनस। अब देखिए एक्स बार एंड वाई बार हमें डायरेक्टली यहाँ पर दिया नहीं है, बट हमें पता है समेशन एक्स क्या, एक्स बार क्या होता है, इट इज समेशन एक्स अपॉन एन मीन, एंड वाई बार क्या होता है समेशन वाई अपॉन एन मीन ऑफ वाई. Now we know all the values, so 1/5, n is 5, summation xy यहाँ है which is 76 minus, now summation x is 20 upon n is 5, summation y is also 20 upon 5. So it is simply, now if you will simplify this, that is 76 upon 5, this will give you 5 ones are 5, 2 remaining, 5 5s are 25, 1 remaining, 5 2s are 10. 15.2 minus 20 upon 5, 20 upon 5. Both are equal to 4. 4 4s are 16. So 15.2 minus 16, answer will be negative 0.8. So this is the value of covariance between x and y. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जहां हमने कोवेरियंस फाइंड आउट किया. अब सेकेंड जो है दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स BYX एंड BXY. रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला भी पता है. रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज अगर BY आपको फाइंड आउट करना है तो वो होता है कोवेरियंस x, y डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x. एंड सिमिलरली अगर आपको BXY निकालना है तो दिस कोवेरियंस विल बी डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ y. ओके, तो BYX या BXY निकालने के लिए पहली चीज जो है वो हमें चाहिए कोवेरियंस, जो कि हमारे पास है, एंड दूसरी चीज हमें चाहिए वेरियंस ऑफ x एंड वेरियंस ऑफ y. तो लेट्स फाइंड वेरियंस ऑफ x एंड वेरियंस ऑफ y here. So your वेरियंस ऑफ x, अगेन बच्चों फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि कौन सा यूज करना है. तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, जो यहाँ पर डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/n समेशन x स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर. दिस इज दी वन फॉर्मूला. एक और फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, xi माइनस x बार होल स्क्वायर का समेशन इंटू 1/n. बट उस तरह का डेटा हमारे पास नहीं है, तो this is what we will be using. So now 1/5, n is 5, summation x square is here which is 90 minus x bar. यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो x bar है which is summation x upon n, उसकी वैल्यू है 4, but 4 square because x bar square है. Now if you will simplify this, you will get 90 upon 5 is 18 minus 16. So 18 minus 16 is 2. This is variance x. Now variance x के बाद we need variance y also. Variance y क्या होगा? It is similar to variance x. जहां पर x है वहां पर हमने y लिखना है. 1/n summation y square minus y bar square. Again substitution, n is 5, summation y square is here which is 90 minus y bar is again summation y upon n which is 4. So this is 4 square means 18 minus 16 is again 2. So we got variance x and variance y. Therefore now we can find BYX which is covariance of x and y divided by variance x. This is the formula. We have both with us, covariance and variance. हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करी है. कोवेरियंस है -0.8 and variance of x है 2, तो it is -0.4. So this is first regression coefficient which is BYX and BXY, second regression coefficient covariance एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई जो है वो बाद में है, इसीलिए डिनोमिनेटर विल बी वेरिएंस ऑफ वाई
and again substitution, and here covariance तो same 0.8, negative 0.8, variance of y is also 2, so it is again 0.4, negative 0.4. so इस तरह से ये हमें तीन वैल्यूज मिल गई हैं which is covariance and regression coefficients. Now third one is correlation coefficient. तो बच्चों यहाँ पर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला जो मैंने दिया आपको प्री रिक्विजिट में हम वो यूज करेंगे, बट लेटर ऑन जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो यू विल गेट वन मोर फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. तो वो फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे. पहले हम जो हमें फॉर्मूला पता है फ्रॉम कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो यूज करते हैं. तो इट इज कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. Now sigma x sigma y क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशंस. बट वी डोंट नो स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशंस हमने फाइंड आउट नहीं किया है, बट स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंसेस क्या है वो रिलेट करते हैं एक दूसरे को. मतलब जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो होता है सिंपली रूट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, and standard deviation of y is root of variance of y. and हमने variances find out करके रखे हुए हैं यहाँ पे, इसीलिए we are writing this standard deviation in terms of variance. अब simply substitution, minus 0.8 divided by root variance x is 2, variance y is also 2. so root 2 into root 2 is simply 2. मतलब यहाँ पर भी आपको क्या आंसर मिल रहा है? माइनस 0.4. सो दिस इज द क्वेश्चन जहां हमने देखा कि कोवेरियंस, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ x on y and y on x, एंड दिस इज द गिवन डेटा. तो बच्चों जो डिफरेंस है बिटवीन प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज कि पहले के क्वेश्चन में आपको समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर ये सब दिया हुआ था, एंड अकॉर्डिंगली वी हैड यूज्ड फॉर्मूला टू फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की जो वैल्यूज पूछी गई थी. अब यहाँ पे समेशंस वगैरह की वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई है एंड उसको यूज करके हमें रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है. तो हमें पता है कि रिग्रेशन इक्वेशन जो है उसमें 3 टर्म्स होते हैं, एक्स बार, वाई बार, बी एक्स वाई if it is regression equation of x on y, and byx if it is regression equation of y on x. So we have means and regression coefficients. तो मीन्स एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो हम रिकॉल करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग वी विल बी प्रिपेयरिंग अ टेबल. तो x बार एंड y बार तो सिंपली मीन है, दैट वी नो हाउ टू फाइंड. नाउ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स bxy byx को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो है फॉर bxy इट इज कोवेरियंस अपॉन वेरियंस ऑफ y, and your numerator is same, covariance upon variance of x. So अगर हमें covariance और variance निकालना है तो हमें पता है कि covariance के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं एंड वेरिएंसेस के लिए भी हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं. तो कोवेरियंस का जो फॉर्मूला है, देखिए ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है, ताकि आपको पता चले कि जो हम टेबल प्रिपेयर करेंगे उसमें कौन कौन से कॉलम्स आने चाहिए. So covariance का फॉर्मूला 1/n summation x minus x bar into y minus y bar. As I told you कि xi की जगह x और yi की जगह y भी हो सकता है. और एक और फॉर्मूला है which is 1/n summation xy minus x bar y bar. अब हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे सो दैट हमारे लिए जो है कैलकुलेशन पार्ट कन्वीनियंट हो, राइट? बिकॉज यहाँ पे जो कैलकुलेशन है दैट मैटर्स अ लॉट. तो हमारे पास दिस इज दी डेटा एक्स एंड वाई का डेटा. तो जो पहले 2 कॉलम्स हैं वो है एक्स एंड वाई. तो एक्स एंड वाई का जो भी वैल्यूज दे रखी हैं क्वेश्चन में दैट वी विल राइट. corresponding values of y.
right? Now after this, to decide कि which formula we will be using, हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं x बार एंड y बार. तो x बार होता है समेशन x अपॉन n एंड y बार होता है समेशन y अपॉन n. तो मीन्स हमको इनको ऐड करना है, और देखना है कि what will be x bar and y bar. So see here, this will be 70, summation x is 70, and here this one 18 plus 7 40. तो here 70 upon n is 5, number of observations जो है वो 5 है. तो x बार की वैल्यू है 14 एंड y बार की वैल्यू है 40 अपॉन 5 विच इज 8. सो ये x बार एंड y बार है. अब x बार एंड y बार जो है दीज आर होल नंबर्स. अब होल नंबर्स होने की वजह से हम जो है हम ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करें कोवेरियंस के लिए तो कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी हो जाएगा. बट अगर हम ये सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं तो कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. डिफिकल्ट मीन्स हियर इट इज मैनेजेबल बिकॉज यहाँ पे नंबर जो है वो इतने बड़े नहीं है. वी कैन फाइंड एक्स वाई, देन एक्स वाई का समेशन, ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम कोवेरियंस के लिए. एंड वेरियंस में जो है वो आपको टर्म मिलेगा एक्स स्क्वायर. तो हमें एक्स स्क्वायर एंड समेशन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड समेशन वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा. तो वो जो है वो थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज नंबर जो है वो बड़े हो जाते हैं. सो उस डिफिकल्टी से ओवरकम करने के लिए वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, सो अगर ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है फॉर कोवेरियंस, एंड वेरियंस का हमें पता है कि v ऑफ x होता है 1/n समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर या फिर 1/n समेशन x स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर. तो अगर हम कोवेरियंस का ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो वेरियंस का भी ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. एंड सिमिलरली वेरियंस y में जो है वो टर्म होगा y माइनस y बार होल स्क्वायर. तो इसके अकॉर्डिंग वी विल बी एडिंग कॉलम्स. तो नेक्स्ट कॉलम होगा x माइनस x बार, देन y माइनस y बार, इसके बाद x माइनस x बार into y माइनस y बार to get this term. Then x minus x bar whole square, y minus y bar whole square. So इस तरह से हम कॉलम्स ऐड करेंगे और हम टेबल बनाएंगे. So these are the columns which we will be adding. अब इसके बाद we will find the entries of these columns. Now x minus x bar है 14, तो 10 minus 14 minus 4 minus 2 minus 1, this will be 3 and this will be 4. So देखिए बच्चों, इसकी वजह से जो है कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाने वाला है बिकॉज 2 डिजिट नंबर से ये रिड्यूस होके 1 डिजिट नंबर रह गया है. एनी हाउ 1 डिजिट नंबर का कैलकुलेशन हैंडल करना कंपेरेटिवली इजी होता है. नाउ y माइनस y बार मतलब 5 माइनस 8, सो माइनस 3 माइनस 2 minus 1 1 5. Then product 12 4 1 3 20. Now squares. So here it will be 16 4 1 9 16. Similarly y minus y bar whole square 9 4 1 1 25. So now summation हमें लास्ट 3 कॉलम्स का समेशन चाहिए. तो वी विल नॉट फाइंड समेशन ऑफ x माइनस x बार एंड y माइनस y बार, विल फाइंड समेशन ऑफ दीज थिंग्स. सो दिस विल बी 16 17 प्लस 3 20 प्लस 20 40. दिस इज 20 21 21 प्लस 9 इज 30 30 प्लस 16 इज 46 एंड हियर इट इज 13 14 15 15 प्लस 25 40. So these are the summations. अब ये summations निकालने के बाद
we will find covariance. Covariance is 1 by n summation x minus x bar into y minus y bar. So 1 by n is 5 number of observations, and this summation is 40. So you will get 8. Covariance is 8. Then we will find variance, which is 1 upon n. Variance of x summation x minus x bar whole square. Substitution, n is 5, x minus x bar whole square. Summation is 46. Reduced form, 5 9s are 45 and 2s are 10. 9.2. Then variance of y, 1 upon n summation y minus y bar whole square. So 1 upon 5, again summation y minus y bar whole square is 40. So it is 8. So like this we got covariance and variances. Covariance and variances मिलने के बाद जो है हम find out करेंगे regression coefficients, because we need regression equations of y on x and x on y. So उसके लिए हमें regression coefficients चाहिए, और ये हमारे पास already हमने find out कर दिया है means. So first regression coefficient bxy जो है covariance xy upon variance. See bxy, y बाद में है तो it is divided by variance of y. Now covariance xy is 8 and variance y is also 8. तो bxy की वैल्यू है 1. byx is covariance xy upon variance x. तो 8 upon variance x is 9.2. So 8 upon 9.2 अगर आप फाइंड आउट करोगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम लिखते हैं तो राउंड ऑफ करके हमें मिलता है 0.87. तो देखिए बच्चों, अभी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, y ऑन x के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे पास है. तो वेरी फर्स्ट थिंग, regression equation of x on y. तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं. तो x on y regression equation है तो it starts with x. ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं, x पहले है, x on y. तो x minus x bar equal to bxy into y minus y bar. Now it is just a matter of substitution. हमारे पास each and every value है. x and y are variables, तो वो as it is रहने वाले हैं, बाकी जगह पे हम substitution करेंगे. तो x bar is 14, bxy is 1, y minus y bar is 8. तो बस अभी इसे हमें सिंप्लीफाई करना है. और एक बात आपने याद रखनी है कि इफ इट इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, तो जो इक्वेशन होगी वो होगी x इक्वल टू ऑल द टर्म्स कंटेनिंग y एंड कांस्टेंट. x ऑन y के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x होना चाहिए, बाकी सारे टर्म्स होंगे राइट हैंड साइड में. तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू y minus 14 shifted to that side will be plus 14 minus 8 होता है plus 6. So x equal to y plus 6. So this is regression equation of x on y. Second part, regression equation of y on x. तो y on x है मतलब it will start from y. So y minus y bar equal to byx, because it is y on x, into x minus x bar. Again substitution, y bar is 8, byx है 0.87, x minus x bar is 14. तो if it is regression equation of y on x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y होगा
बाकी जितने भी टर्म्स है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसके पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0.87 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल गिव यू 14 7s are 98, 12, 12.18. So it is y equal to 0.87x minus 12.18 plus 8. Negative 8 shifted on that side will be positive 8. So y equal to 0.87x minus 4.18. So this is the regression equation of y on x. So see students, here we had seen कि if x and y are given, मतलब अगर आपको order pairs पता है x की value and y की different values, then how we can find these equations which will relate these variables. तो अभी अगर in case आपको अगर पूछा हो कि suppose y is 10 तो x की वैल्यू क्या होगी, तो हम इजीली निकाल सकते हैं. If y is 10, x will be 16, right? Similarly, अगर x की कोई वैल्यू दी गई हो and y पूछा हो तो we can make use of regression equation of y on x. Okay? So this is the next question where the data which is given is x is marks of a student in economics and y is the marks of student in a mathematics. And these marks are given. We need to find regression equation of y on x. So अगर हमें regression equation of y on x चाहिए तो as usual we should know means x bar, y bar. Since it is y on x, so we need regression coefficient byx. ये तीन चीजें हमें चाहिए. तो पता है कि हमें x bar y bar कैसे मिलेगा, ऐड करेंगे. Then byx के लिए we have formula covariance upon variance, but covariance and variance के दो फॉर्मूले होने की वजह से कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करना है ये डिसाइड करने के लिए we need to write x and y की values and we will find x bar and y bar in the very first step, and that will decide कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है या फिर दोनों फॉर्मूले यूज करने के बाद कैलकुलेशन अगर डिफिकल्ट होती है तो कौन सा कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है. ओके, सो लेट्स फाइंड x बार एंड y बार. सो ये x y, so let's write all the values. So see students, here numbers are 2-digit number and थोड़े बड़े numbers है. तो इतना आप इजीली पता लगा सकते हो कि अगर हमने कोवेरियंस एंड वेरियंस का फॉर्मूला, जो कोवेरियंस का फॉर्मूला जो कुछ इस तरह से है 1/n समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स वाई इंटू एक्स बार इंटू वाई बार, अगर ये हमने यूज किया तो कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई मतलब इनको मल्टीप्लाई करना एंड फिर समेशन निकालना. एंड वेरिएंस का अगर हमने ये फॉर्मूला यूज किया, वेरिएंस एक्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा दिस. सो इस रीजन की वजह से हम ये फॉर्मूले तो यूज नहीं करेंगे, राइट? अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, बट दूसरा ऑप्शन भी हम देखेंगे कि वो हमारे लिए कन्वीनियंट है कि नहीं है. तो उसके लिए ही हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट करेंगे एक्स बार विच इज समेशन एक्स अपॉन एन, एंड हम फाइंड आउट करेंगे y बार विच इज समेशन y अपॉन n. तो वी नीड एडिशंस, इन ये फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम का एडिशन हमें चाहिए. तो दिस इज 10 12 plus 3 15, 1 here, so 12, this is 305. Let's find summation of here these numbers.
दिस इज 402. सो ये हमें समेशन मिला है, राइट. सो लेट्स फाइंड x बार. सो 305 अपॉन n. अगेन n इज 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये जो है ये आपको आंसर देगा. आंसर इन द सेंस x बार की वैल्यू 61. लेट्स फाइंड y बार 402 upon 5. So this will be 80.4. So देखिए बच्चों यहाँ पर जो ये डेसिमल में मिल गई है वैल्यू, y बार की वैल्यू डेसिमल में होने की वजह से अगर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया डायरेक्टली, जहाँ पे हमें y माइनस वाई बार की रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर हमने वो कॉलम फाइंड आउट किया तो वो जो वैल्यूज है हमें डेसिमल में मिलेगी. एंड डेसिमल में अगेन डील करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. अगर हमें स्क्वायर निकालना है या मल्टीप्लाई करना है तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. तो ये सब डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए जो है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि हम दो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे x और y की जगह, राइट. x और y की जगह हमने दो न्यू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने हैं. एंड वो जो दो नए वेरिएबल्स होंगे वो होंगे u which will be x minus something. I'll tell you what is that something. and v y minus something. तो ये जो x minus which number that is decided from the given data. ये जो x की वैल्यूज दी हुई है ये वैल्यूज में जो मतलब अगर आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो जो मिडिल में जो नंबर आता है बेसिकली हम वो लेते हैं. अदरवाइज जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो वाला लेते हैं. आई टेल यू वो वाला हम क्यों लेते हैं. तो यर इन दी वैल्यूज ऑफ x रिपीट कुछ नहीं हो रहा है एंड मिडल में है 61. एंड y की वैल्यूज में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 82 इज रिपीटेड. तो 82 लेना कन्वीनियंट होगा. तो इस तरह से हम दो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे, u which is x minus 61 and v which is y minus 82. See students, this shift of origin makes the problem very simple. जो आपका कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल हो जाता है इसकी वजह से. तो x minus 61, let's find these values. This will be minus 2, minus 1, 0, 1, 2. y minus 82. So ये minus 4, 0, 0, minus 3, minus 1. तो u and v ये दो नए वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं. मतलब जो हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे y ऑन x है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो होगा वो होगा byx. ये हमने फाइंड आउट करना है. ओके. एंड हमने क्या किया है, हमने यूज किया है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट. तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं उसके अंडर जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. मतलब what we will write is, we will write shift of origin does not affect regression coefficient. रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे कोई असर नहीं होता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का. मतलब अगर मुझे byx फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू bvu. ये दोनों वैल्यू सेम होंगी. एंड हमने क्यों दो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए. तो buv का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से होगा, वो होगा कोवेरियंस uv upon variance of u, because it is vu. u is coming like जो u है वो बाद में आ रहा है इसलिए it is variance of u से डिवाइड करते हैं. ओके. नाउ कोवेरियंस का कौन सा फॉर्मूला अब हमारे लिए कन्वीनियंट होगा. मतलब आपको कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला तो पता ही है, विच इज 1/n समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार. तो एक्स वाई की जगह जस्ट u एंड v हमने लिखना है.
formula will remain same. So it is summation uv minus u bar v bar divided by 1 by n summation, see vu, variance of u will be summation u square minus u bar square. So this is the formula which we will be using it. मतलब जो आपने कोवेरियंस एंड वेरियंस का है वो पहला वाला फॉर्मूला आपने यूज किया है, बिकॉज हमने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट यूज किया कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए. तो इसके अकॉर्डिंग अब जो कॉलम्स हमने यहाँ पर ऐड करनी है दैट विल बी, सबसे पहला कॉलम होगा यू वी, इन दोनों का प्रोडक्ट. सो सी स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एक्स वाई it is better to find uv because numbers are reduced. एंड उसके बाद वेरिएंस के लिए वी नीड u स्क्वायर, तो हम u स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. तो uv प्रोडक्ट अगर हमने फाइंड आउट किया तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा. देखिए बच्चों, जब ये जो नंबर रिपीट हो रहा है अगर उसको हमने एज्यूम्ड मीन लिया है तो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ जाते हैं, कैलकुलेशन और सिंपल हो जाता है. वो -3 -2, now we need u स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर. now we need summation, तो इनको ऐड करेंगे. एंड वी नीड u बार एंड v बार ऑल्सो, तो इसको भी ऐड करेंगे. देखिए ये 0 हो जाएगा. दिस वन विल बी -8 योर 3 एंड दिस वन 10. तो देखिए इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ these bigger numbers it is better to deal with these smaller numbers. and ये smaller numbers हमको कहाँ से मिले? by using shift of origin. तो अब इसके लिए हमें देखिए u बार एंड v बार की रिक्वायरमेंट है. सो u बार जो है वो होगा समेशन u अपॉन n. तो समेशन u तो यहाँ पर 0 है, 0 अपॉन 5 इज 0, सो u बार इज 0. एंड v बार जो है वो है समेशन v अपॉन n. summation v is here which is -8 upon 5, मतलब -1.6. so ये इस तरह से v बार मिल गया. अब ये यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे. so 1/5 summation u v is 3 minus u bar is 0 into v bar minus 1.6 whole thing divided by 1/5 summation u square जो है वो है 10 minus u bar square. तो u bar is here which is 0 square. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब 0 होने की वजह से जो है ये पार्ट 0 हो गया, ये भी 0 है. सो दिस इज सिंपली 3/5 divided by 10/5 which is 3/5 into 5/10. 5 and 5 cancels. 3/10 is 0.3. So this is what is the value of byx. तो byx इस तरह से हमें मिल गया. Therefore regression equation of what we need is y on x is, अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे y minus y bar is equal to byx times x minus x bar, and we have all the values which are required for this formula. y minus y bar देखिए क्या है, it is 80.4. byx is here 0.3, x minus x bar is 61. तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी बताया कि अगर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x की रिक्वायरमेंट है तो y का टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा एंड बाकी सारे टर्म्स राइट हैंड साइड में होने चाहिए. तो दिस विल गिव यू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 को इनसाइड द ब्रैकेट माइनस दिस वन विल बी 18.3 प्लस 80.4, मतलब y is equal to 0.3x plus 62.1. So this is the regression equation of y on x. So बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अलग था.
अलग क्यों था, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स थोड़े बड़े थे। अब नंबर्स बड़े होने के बाद अगर आपका x बार एंड y बार डेसिमल में नहीं आता, मतलब होल नंबर्स मिलते, तो हमने इजीली हमारा वो जो फॉर्मूला है कोवेरियंस का 1/n समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, एंड वेरियंस के लिए भी वैसे ही फॉर्मूला कुछ, तो हम वो यूज कर लेते, राइट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर हो गई कि जो हमें y बार की वैल्यू है वो डेसिमल में मिल गई, और डेसिमल में मिलने के बाद जो है अगर आप वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको सबकी सब वैल्यूज डेसिमल में मिलेगी, और कैलकुलेशन पार्ट है जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैलकुलेशन पार्ट को इजी करने के लिए नंबर्स जब भी थोड़े बड़े हैं, 2 डिजिट नंबर्स है, तब हम यूज करते हैं ये हमारा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट। एंड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जो है ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे कोई असर नहीं डालता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो अनअफेक्टेड रहता है। मतलब अगर आपको BY(x) निकालना है तो दैट इज BVU। ये हमने U एंड V क्यों इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट जो आपका ये नंबर्स है थोड़े रिड्यूस हो जाए और हमें डील करना इजी हो। तो इस तरह से हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, एंड हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करके वी फाइंड regression equation of y on x. So students, here we had seen the concept of linear regression कि वो क्या होता है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है, एंड रिग्रेशन इक्वेशन के 2 टाइप्स y on x एंड x on y का फॉर्मूला, उसके अंडर जो भी रिक्वायरमेंट्स है मीन्स x बार y बार bxy एंड byx रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, उनको निकालने के फॉर्मूले, एंड कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करना है, तो जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आप यू विल फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद कैलकुलेशन पार्ट, तो वो आपको डिसाइड करने आना बहुत जरूरी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिग्रेशन इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग सून, जिसमें हम देखेंगे अनदर पार्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन। थैंक यू।